Assalamu alaikum. We're back. We did 11A and 11B and basic definition. We're going to continue with 11C. Don't worry about what 11C or B or A refers to. Basically हमने वो उसी book के साथ जो आप लोग follow कर रहे हो उसी की exercises चंद उठाई हैं. We're solving some basic questions. And in this video we'll be doing C, 11C, 11D and we'll go to the past paper questions as well. Here you have another question. The question says if it's not visible enough, the figure shows a quadrilateral. Quadrilateral is a four-sided shape, A, B, C, D. Where ABC and BCD are 90 ये उन्होंने already mark भी कर दिए हैं. AB is 4 ये रहा, DA and DC are 7 ये और ये 7 है. Find ADC. They're asking us to find this angle. Think about it for 30 seconds and then we'll continue with the solution. We need to find the angle over here, ADC. Gee, any idea what are we going to do? A new triangle. So should we drop a dotted line from here to here? What kind of angle would this be? A 90-degree angle. Well done. So basically we made a right angle triangle over here, this one, so that we can apply SOH CAH or TOA. ADC के लिए basically angle में highlight कर देता हूँ ये है. क्या करेंगे? Which two sides do we have? This is going to be 3. How? Because 7 minus 4. So basically you're saying if this is 4, this is also going to be 4. और अगर ये पूरी साइड 7 थी यहाँ से लेके यहाँ तक, so 7 minus 4. Well done. So 7 minus 4 because ये साइड और ये साइड इक्वल है. 7 minus 4 gives us 3. तो हमारा ये साइड 3 होगी. ओके, नाउ वी हैव इस एंगल के ये कौन सी साइड है? ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज. ओके, तो वी हैव एडजेसेंट साइड एंड वी हैव द व्हाट अदर साइड डू वी हैव? हाइपोटेन्यूज. Hypotenuse is 7. So once again I'll write down SOH CAH and TOA. इसमें से हमारे पास adjacent है और hypotenuse है. Adjacent और hypotenuse किस कैटेगरी में आ रहे हैं? साइन, cos एंड tan में से cos में ये दो रहे. Adjacent, A for adjacent, H for hypotenuse. So we'll apply that and let's bring up the solution up here. Here we go. Since हमने ADC निकालना था, हमने cos of ADC निकालना है. ये हमारा एंगल है beside cos ADC. ADC 3 the side adjacent to it. ये हमने अभी लिखा था. Let me write that down as well. Hold on. Since हम cos यूज कर रहे हैं, तो cos of ADC is equals to adjacent over hypotenuse. एडजेसेंट की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसके एडजेसेंट ये है, इसका हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का 7 है. 3 over 7 आ गया. अब कॉस वहाँ जाके कॉस इनवर्स हुए थे. कॉस इनवर्स का भी हमने कॉन्सेप्ट किया था. कैसे फाइंड करते हैं कि ये हमने प्रेस करना है शिफ्ट का बटन पहले एंड देन कॉस, यू विल हैव कॉस इनवर्स. Cos inverse and then you can put a bracket like this if you have this calculator. Write 3 over 7, 3 over 7 and is equal to 64.623 and angles are always rounded off to one decimal place. 64.6 हमारा आंसर आ गया for ADC. अब लेंथ ऑफ BC ये हमारे पास ये कैसे आएगा? Think about it. जबरदस्त. If we can somehow find this length, we can say कि जी वही लेंथ BC की है. Why? Because it's a rectangle. और जब भी रेक्टेंगुलर शेप है उसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो इसको हम कैसे निकालेंगे? थ्रू ओके साइन. शाबाश. सो लेट्स ब्रिंग दिस सोल्यूशन अप हियर. अब हमने लेंथ BC निकालनी है तो वी कैन यूज साइन. साइन का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. तो साइन हम यूज करें कि जी ये हमारे पास साइड नहीं है, तो साइन AD, लेट्स कॉल दिस साइन ADC इज फाइन, इज इक्वल टू AX. यहाँ इसको X लेबल कर लेते हैं. वी विल हैव
दिस एज एक्स, तो ए एक्स ओवर 7 ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास। अब ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वी कॉल्ड इट ए एक्स। 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। एंड इफ यू राइट दिस डाउन इन योर कैलकुलेटर, व्हाट डू यू गेट? कैन यू कंफर्म दिस? आई हैव अ सॉल्यूशन ओवर हियर बट आई वांट यू टू कंफर्म इट। Those of you who are watching the video, 7 sin 64.623 लिखो in your calculator, press is equals to 6.324. Here we have it. तो आपकी ये साइड ए एक्स 6.324 आ गई। अब हमारा फाइंड क्या करना था? लेंथ ऑफ बी सी। सिंस ये 6.324 है तो ये भी 6.324 हो। हमारा ए बी और सी और डी हो गया। एक और ज़रूरी चीज़ जो है इन दिस टॉपिक इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इज़ एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ। इमेजिन इस किस्म का सिनेरियो है कि आप खड़े हो दरख्त के पास और ऊपर यहाँ पे एक कवा है, ठीक है। अब आप यू वांट टू नो आपकी हाइट, लेट्स अज्यूम इट्स 2 मीटर्स फॉर द सेक ऑफ असम्पशन, क्वेश्चन इजी रहे। अब आपने फाइंड करना है कि यार ये हाइट ऑफ द ट्री, नॉट ओनली द ग्रीन पार्ट जहाँ पे वो ग्रोथ है, बट ऑल्सो द ट्रंक क्या होगी। इफ यू नोटिस वी कैन मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम योर आईज। वहाँ से if you draw a dotted line up to the point where the crow is sitting, drop it from the to the tree trunk and then join it to your eyes again, we have a right angled triangle। ये right angle बन रहा है। Once again we can use SOH CAH or TOA to find the height of the tree. Which ratio are we going to use? 10. Why? Perfect. हमारे पास opposite नहीं है। Let me write that down. We do not have the opposite value, unknown। एडजेसेंट हमारे पास ये रहा। और आपको पता है कि tan के अंदर जब हम टोआ लिखते हैं तो ये tan t तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है tan, o इधर आ जाता है और a यहाँ पे आ जाता है एडजेसेंट के लिए। तो विल सिंपली राइट इट डाउन लाइक दिस। हमारे पास एंगल 30 है, तो विल से tan 30 is equal to the height or where the or basically how high the crow is sitting, right, over 10। I'll repeat, tan 30 is equal to opposite over adjacent। हमारे पास वो हाइट आ गई कि क्रो ट्री ट्रंक से कितना ऊपर है, दैट्स 5.7735। लेट मी, हाँ 5.7735। लेट मी राइट दैट डाउन ओवर हियर, 5.7735। अच्छा, अब ये तो हाइट है उसकी जहाँ पे ग्रोथ है ट्री की, ट्री ट्रंक को एक्सक्लूड करते हुए। ट्री ट्रंक जितनी हाइट आपकी भी थी, तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्रो की कितनी होगी? Perfect. We'll add this too because इतने height तो आपकी भी है to the remaining height of the length where how high the crow is sitting from the tree trunk. So we'll have 5.7735 plus 2 and we end up with perfect. The crow plus the 2 meters that we just know he exists from here, this one, and we'll end up with 7.7735. Now we're going to head on to some past paper questions, some really basic ones that deal with basic trigonometry। Let's see if we can do those। Here we go। हमने इसमें लेंथ AD की निकालनी है। This is by the way I guess, let me tell you what question this is, what year। This was November 2016, P2 and question number 4। This is not the entire question, but this is the part that deals with basic trigonometry। तो AD निकालना है। How will we do that? We could cos, well done, cos 27 is equal to adjacent over hypotenuse। I'll write that down। We might have the solution, no we don't। हम क्या लिख सकते हैं जी? cos of a sorry ADB, yes, cos of ADB is equals to adjacent over hypotenuse। और हमारा cos of 27 is equals to adjacent is how much? AD, that we have to find, and hypotenuse is 3। Those of you who lost, ADB ये एंगल है, इसके adjacent क्या है? ये साइड, और hypotenuse is always the side opposite to the right angle। Adjacent over hypotenuse can we end up with 2.67। Can you give me the entire value with some decimals? Other 30, okay।
अब हम जब भी साइड हो तो वी राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट विल दैट बिकम? 2.67। जबरदस्त। सी डी, सी डी भी हमने सी शेप का निकालना है, वो कैसे होगा? सी डी इज दिस साइड। देखो अगर नोट करो तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट? सी डी निकालना है, तो अगर आप इसको इग्नोर कर दो तो ये भी यू विल सी राइट एंगल ट्राइंगल। तो वी हैव दिस एंगल, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और इस एंगल के ये ऑपोजिट है, तो वी हैव, हाँ राइट, वेल डन। आई विल सॉल्व द सेकंड वन इन ग्रीन। साइन ऑफ एंगल क्या लिखूंगा, बट इफ यू वर टू लेबल इट इन लेटर्स बी सी डी, राइट? साइन ऑफ बी सी डी इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एग्जाम में एक दफ़ा इस तरह ज़रूर लिखा करो ताकि आपका फॉर्मेट ठीक रहे। साइन 41 आप बी सी डी की जगह वो लिख दिया, ऑपोजिट इसके क्या है? 3। हाइपोटेन्यूज क्या है? सी डी, जो हमने निकालना है। और ज़रा ये सी डी यहाँ चला जाएगा और साइन 41 नीचे आ जाएगा, तो वी राइट सी डी इज़ अप हियर नाउ, 3 ओवर साइन 41। जो कैलकुलेट करके दिखाओ, मैं भी करता हूँ साथ साथ। इफ़ आई वर यू ना, मैं पहले क्या लिखता, साइन 41, साइन 41 मेरा आंसर आ जाता 0.65, आई वुड हैव सेव्ड दैट, राइट? अब मैं क्या करता कि इसको ऑन के बटन से या एसी से क्लियर कर देता। अब आंसर सेव्ड है, आई विल डू 3 डिवाइडेड बाय आंसर, आई गेट 4.5। आपको भी सेम आ रहा है, ज़बरदस्त। दैट्स योर लेंथ ऑफ सी डी। सी डी इज इक्वल टू 4.527। अच्छा यार, साइड है तो उसको किसने सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है? 3, तो 4.57। अच्छा, दोज ऑफ यू स्ट्रगलिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर, वो उसके एक लेदर वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी शेयरिंग माय नंबर ऑन द पेज एज वेल, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आई कैन टेल यू apart from that video as well. Let's move on to the next question. Here we go. ACB, हमने ACB निकालना है। दिस इज नवंबर 2012 P2, और P2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सारे पार्ट्स में नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। तो ये एंगल C कैसे निकल सकता है? 10। व्हाई डू यू थिंक सो? परफेक्ट, इस एंगल को निकालना है, इस एंगल की ऑपोजिट वाली वैल्यू गिवन है और एडजेसेंट वाली। मैं फिर यहाँ पे वंस अगेन सो का और टोआ लिख देता हूँ। इसमें से आपने देखना सिर्फ किसको होता है, ज़रूरी आपके होते हैं ये दो लेटर्स, ये वाले। अगर ये दो हों तो साइन लगेगा, ये दो अवेलेबल हों तो कॉस लगेगा, ये दो अवेलेबल हों तो टैन लगेगा। ज़बरदस्त। तो हमारे पास यार ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है, तो आपने मुझे कहा टैन ऑफ ए सी बी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 10/6.5, राइट? टैन ऑफ ए सी बी, इस एंगल का टैन इज इक्वल्स टू tan of ACB is equal to 10/6.5। 10/6.5। अब हमने जब भी अब ACB फाइंड करना है तो tan से हमने वी हैव टू गेट रिड ऑफ tan, ACB को सब्जेक्ट बनाना है। जब भी tan वहाँ जाएगा tan इनवर्स लिखा जाएगा, tan इनवर्स। और याद रखना इसको आपने ब्रैकेट में डाल के फाइंड करना है। 10/6.5 को पहले कैलकुलेट कर लो तो बहुत बेहतर है, फिर उसको आंसर वाले मेथड से कर लेना। कि वो नहीं आता तो शिफ्ट दबा के tan दबाओ, शिफ्ट दबा के tan दबाओ, और ब्रैकेट में अब आप लिखोगे 10, ये ओवर का साइन या ये डिवाइड वाला साइन यूज़ कर लो, 65 एंड हाउ मच डिड यू गेट? यार ये मेरा क्यों, ओ सॉरी 6.5 था, मैंने इसको, हाँ 56.9761। अब ये क्या है, एंगल या लेंथ? एन एंगल इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू, परफेक्ट। 57 हमारा बन जाएगा। वन डेसिमल प्लेस 57 किस तरह बन रहा है कि दिस इज द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, वी लुक राइट नेक्स्ट डोर, 7 है, 7 इसको राउंड अप करेगा, ये ऑलरेडी इसमें राउंड अप होने की गुंजाइश नहीं है, तो दिस विल राउंड दिस नंबर अप टू 57। ठीक है, ओके। आई थिंक वी जस्ट लेफ्ट विद yep, one more question. Let's wind this up. The reason we're going through it really quickly is that basic trigonometry is easy. We'll spend some more time on further trick. Here we have it. This is another question from your past paper. I haven't noted down which year it was. लेकिन
बेसिक सिनेरियो जो सारा है जो मेंशन्ड है वही लिखा भी हुआ है शेप के ऊपर। ए डी फाइंड करना है आपने। अब आपके पास 10 जो है सिर्फ इतना है, 16.4 तमाम लेंथ है, ये 6.5 है, टेक अ हाफ अ मिनट। ए डी कैसे निकलेगा? ऑल राइट, यू थिंक पाइथागोरस से लगेगा? हाउ? आप इसे छोटे वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हो कि बड़े वाला? ओके, तो यू से दिस इज द इंटायर हाइपोटेन्यूज और ये एक बेस है तो इसके परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ऑल राइट, लेट्स राइट दैट डाउन। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर आप कह रहे हो हाइपोटेन्यूज है तो 16.4 स्क्वायर, बी जो है वो बेस है, वो यहाँ लिख लेते हैं 6.5 स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। वैल्यू साथ साथ बताओ ज़रा, 16.4 का स्क्वायर क्या है? 268.96। 6.5 का? वेल डन। और अब क्या करेंगे? ज़बरदस्त करो, 268.96 माइनस 226.71। अब देखो एक साइड पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस साइड, बट उसका भी स्क्वायर, हमें पूरा स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इसकी लेंथ चाहिए, तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इफ यू टेक दैट, जरा बताना आंसर। परफेक्ट। 15, ओ वेट होल्ड ऑन, 15.0। और ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं है क्योंकि ये तो कंबाइंड है विद, शाबाश। तो ये जो हमारा आंसर है ना भाई, ये सारा है 15.056 पूरी लेंथ का, बी डी का। इसमें से हमने ये 10 माइनस करना है, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? एक्सेलेंट, 5.056 हमारी ये लेंथ आ गई ए डी की। और वी डन विद दैट। अब सेकंड पार्ट कहता है डी सी बी की वैल्यू निकालो। डी सी बी, ये पूरा एंगल, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ से लेके, विट लेट्स नॉट इरेज दैट, माइट नीड इट। डी सी बी, हाँ जी, एनी क्लू? वेल डन। आप कह रहे हो कि पूरे ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं बिकॉज पूरे एंगल की बात हो रही है, बी सी डी। अगर बी सी ए होता तो फिर छोटे ट्रायंगल के बारे में सोचते, लेकिन बी सी डी है। तो आप वंस अगेन यू बिलीव कि हमारे साथ एडजेसेंट वाली चीज़ गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो लेट्स राइट दैट डाउन। वी हैव एडजेसेंट, टिक, वी हैव हाइपोटेन्यूज, टिक, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ एडजेसेंट? एडजेसेंट किसके बाय द वे? एडजेसेंट एंगल सी के, राइट? इसके एडजेसेंट, तो एडजेसेंट की वैल्यू 6.5 और हाइपोटेन्यूज इज 16.4। एडजेसेंट हमेशा वो चीज़ होती है जो साथ लिखी हुई होती है। तो वील राइट कॉस ऑफ बी सी डी is equal to adjacent over hypotenuse. Adjacent is 6.5, hypotenuse is 16.4, cos of BCD। अब BCD की क्या वैल्यू आ गई? cos इनवर्स 6.5 over 16.4। I'll repeat, प्लीज़ आपने इसको cos इनवर्स जब करना है तो ब्रैकेट्स में लिखना है, यहाँ इसको पहले सॉल्व कर लेना और फिर उसका cos इनवर्स लेना है, इफ़ यू गुड विद कैलकुलेटर कैलकुलेशंस। व्हाट डू वी गेट जी? 66.65। BCD is equal to 66.65. Now this angle is once again rounded, should be rounded off to one decimal place, 66.7। आपका आंसर ये आ जाएगा 66.7। That's pretty much the end of trigonometry। मैं इसमें आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ of what's happening। We studied trigonometry के ये trigonometry लफ्ज़ कैसे बने, ट्राइगोनोमेट्री से। सो का टोआ पढ़ा। सम पीपल हैव क्लियरली
ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग भी कई बच्चों को याद है, दैट्स ऑल राइट, दैट वर्क्स फॉर यू। सो का टोआ इसलिए ईजी भी है और बुक में भी है, तो इट्स यूजली वाइडली नोन। एस सी और टी जो हैं, दिस इज स्टैंडिंग फॉर साइन कॉस एंड टैन। ओ और एच बता रहे होते हैं कि कौन कौन सी साइड अगर आपके पास गिवन है। अगर आपके पास ए और एच गिवन है तो आपने कॉस लगाना है, ओ और ए गिवन है टैन लगाना है, ओ और एच गिवन है तो साइन लगाना है। तीन कॉम्बिनेशन है, वेरी इजी। वी डिड सम बेसिक एक्सरसाइज जिसमें हमने हाइपोटेन्यूज साइड ऑपोजिट टू अ सर्टेन एंगल, साइड एडजेसेंट टू अ सर्टेन एंगल फाइंड किया। देन वी डिड सम कैलकुलेशंस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, और फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड शेप्स जिसमें दो दो ट्राइंगल्स जॉइन हुए हैं वो किया। एंड फिर 11C में we came up with some we solved some diagrams जिसमें we weren't given exact shapes, हमने खुद एडिट करके शेप्स को ट्राइंगल वगैरह बना के वैल्यूज फाइंड करनी थी। डी में we did practical applications, ट्रिवियल एग्जांपल की, और फिर we did solve some 3 past paper questions। once again ये ट्रिग्नोमेट्री के फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे फर्दर ट्रिग एंड वील सॉल्व सम क्वेश्चंस इन दोस। So I hope it made sense to you. Take care and Khuda Hafiz.